देखो, in case of SN1 the reaction the full form for this is SN1 SN2. ठीक है, SN1 substitution nucleophilic unimolecular, right? Similarly SN2 is substitution nucleophilic bimolecular. तो SN2 and SN1. तो पहले हम लोग SN1 की बात कर लेते हैं। SN1 में बेसिकली क्या है? SN1 substitution nucleophilic unimolecular. This term unimolecular is coming from chemical kinetics. Chemical kinetics word, chemical kinetics का मतलब है kinetics is related with the speed. तो this refers to the speed of the reaction. तो substitution nucleophilic unimolecular का मतलब है these are the reactions in which rate of reaction is dependent on the concentration of one of the reactant only. For example, if I write the reaction like this, this is the reaction. So we get the product like this. तो इसको हम कहते हैं substrate. ये हो जाता है हमारा न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल जिसको रिप्लेस करता है उसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप. We have another name for leaving group and that is nucleofuge. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है कि a weaker base is a better nucleophile. Sorry, a weaker base is a better leaving group. ठीक है, better leaving group. डन. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात हुई? बेटर लिविंग ग्रुप. ऐसा क्यों होता है? बेटर लिविंग ग्रुप क्यों होता है बताओ? देखो, जो भी बेस होता है, जो भी हमारा बेस होता है, अगर हमारा बेस कोई स्टेबल होता है तो वो फॉर्म होना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई डिस्कस द केस ऑफ HI एंड HBr. ठीक है, तो विच इज अ बेटर बेस, HI और HBr. ये कैसे हम पता लगाते हैं? ये हम पता लगाते हैं HI डिसोसिएट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा H प्लस I माइनस में, और HBr डिसोसिएट होगा, अगेन ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस और Br माइनस में. बट इफ यू लुक एट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HI and HBr, the bond dissociation energy of HI is less, and since its bond dissociation energy is less, it is a stronger acid. एंड स्ट्रॉन्गर एसिड है, इस बात का मतलब ये हुआ कि ये डिसोसिएट ज्यादा होगा, और डिसोसिएट ज्यादा होगा इस बात का मतलब है I माइनस की कंडीशन में ज्यादा रहेगा. तो I माइनस की कंडीशन में स्टेट में ज्यादा रहेगा तो कंबाइन नहीं होगा H प्लस से, और जब ये H प्लस को ले नहीं पाएगा तो हम इसको कहेंगे वीकर बेस. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट a strong acid has a weaker conjugate base. This we have learnt in ionic equilibrium as well. Why it is a better leaving group? देखो, लीविंग ग्रुप यानी कि लीविंग ग्रुप मतलब वो एटम जो पहले तो बॉन्डेड स्टेट में था एंड नाउ इट हैज कम इनटू द आयनिक स्टेट. तो ये आयनिक स्टेट में आके स्टेबल भी तो होना चाहिए. तो Br माइनस और I माइनस में से आयनिक स्टेट में आके कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? I माइनस, क्योंकि इट हैज बिगर साइज, एंड इफ इट हैज बिगर साइज इट कैन stabilize its negative charge easily than the Br minus does. So that is why I minus is a better nucleophile. Now look at the mechanism of the reaction. So mechanism में basically क्या होता है SN1 में? Step one is breaking of Cl bond. C is the carbon and L is the leaving group. तो
इस why does this breaking takes place, इसके लिए दो important point हमें याद रखने हैं, और वो important point है presence of polar solvent, and the second important point is formation of stable carbocation. जैसे I have taken the case of tertiary butyl bromide, so I'll continue with the same compound. SN1 का मतलब मैं समझा रही थी यहाँ पे, SN1 मतलब द रेट ऑफ सच रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन सब्सटेंस. तो यहाँ पे दो सब्सटेंसेस हैं हमारे, एक तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और दूसरा है OH-. दीज टू आर द रिएक्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन. तो इस रिएक्शन 1 का मतलब ये है, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल डिपेंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. So CH3 whole 3 CBr. So all those nucleophilic substitution reactions in which the rate of reaction depends only on the concentration of alkyl halide are known as SN1 reaction. Reason ऐसा क्यों है ये अभी हमें समझ आएगा when we see the mechanism. So in this I've said that we need a polar solvent. Polar solvent could be water, right? Alcohol भी हो सकता है, ठीक. तो अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कार्बन एंड ब्रोमीन. सो ब्रोमीन will pull the shared pair of carbon bromine electron towards itself and thereby creating a positive charge on carbon. So you will get the product after this step as tertiary butyl carbocation and Br minus. तो देखो एक तो इम्पोर्टेंट चीज प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट ने काम क्या किया, पोलर सॉल्वेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना किया विच इज कॉल्ड सॉल्वोलिसिस. ठीक है, सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या है कि वी हैव टेकन एन एल्काइल हैलाइड से RH. अब पोलर सॉल्वेंट जो होगा उसके पास पोल्स होंगे, जैसे वाटर है, वाटर के पास पोल्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पोल हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पोल ऑक्सीजन. सो positive pole of water will attract the negative pole of RH. Negative pole is the halide. तो हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन R को क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन इसको अटैक कर रहा है. तो दैट इज व्हाई दिस सॉल्वोलिसिस. देखो कोई भी अट्रैक्शन जो होता है उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो सॉल्वोलिसिस से जो एनर्जी रिलीज हो रही है इट इज हेल्पिंग टू ब्रेक द RH बॉन्ड. ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस. आया अच्छे से समझ में दिस पॉइंट. सो अब क्या होगा यहाँ से, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अब देखो R पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन R पे पॉजिटिव चार्ज आके स्टेबल भी तो होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने CH3Br लिया होता तो सॉल्वोलिसिस से इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती कि ये बॉन्ड टूट जाए. क्यों? बिकॉज CH3 प्लस इज लेस स्टेबल देन टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन. तो जैसे जैसे जो इंटरमीडिएट है हमारा वो स्टेबल होता जाता है, वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होती जाती है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लाइन दैट वी नीड अ स्टेबल कार्बोकेटाइन. क्लियर? आगे देखें. तो अब हमारा स्टेप 2. स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि अब हमारा कार्बोकेटाइन तो बन चुका. अगर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट के चांस होते हैं तो वो रीअरेंज हो जाता है, और अगर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट के चांस नहीं होते तो वो नहीं रीअरेंज होता. फॉर एग्जांपल इफ आई हैड टेकन अ मॉलिक्यूल लाइक दिस, सपोज मैंने ये मॉलिक्यूल लिया था, तो अब इसमें फर्स्ट स्टेप के बाद जो मुझे कार्बोकेटाइन मिला होता दैट वाज लाइक दिस. तो स्टेप 2 जो है वो हमारा ऑप्शनल हो गया कि रीअरेंजमेंट इफ एनी. जैसे अभी मैं टर्ट ब्यूटाइल का केस ले रही थी तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं था तो नहीं होगा. सो दिस स्टेप विल नॉट एग्जिस्ट इन दैट केस. जबकि यहाँ पे रीअरेंज हो जाएगा, ये रीअरेंज होगा, ऐसे रीअरेंज होगा ये. सो देयर विल बी
ठीक है, ये कार्बोकेटायन होगा एंड देन ये फर्दर रीअरेंज होके यू विल गेट अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन। डन। तो ये रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है, ऑप्शनल है, मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। अब हमने स्टेप 3 लिया है। स्टेप 3 क्या है हमारा, जो हमें स्टेबल कार्बोकेटायन मिला है उस पर अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल मैंने HO माइनस लिया था शुरुआत में, वो इस पे अटैक करेगा एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं इन स्टेप्स की स्पीड की, कि किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पढ़ा। फर्स्ट स्टेप में कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होना था, एक स्टेबल मॉलिक्यूल था जिसको हम ब्रेक कर रहे थे। तो ये वाला स्टेप स्लो स्टेप होगा, रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन का, क्योंकि एक इंटरमीडिएट से दूसरा इंटरमीडिएट बन रहा है तो फास्ट होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे दो मतलब दो अपोजिटली चार्ज स्पीशीज, एक कैटायन एक एनायन आपस में पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेप भी फास्ट होगा। अब अगर इसमें तीनों स्टेप्स में जो स्लो स्टेप है वो ही रिएक्शन की काइनेटिक्स को डिटरमाइन करता है, राइट। रिएक्शन की काइनेटिक्स डिटरमाइन करता है, इस बात का ये मतलब है कि अगर मुझे रिएक्शन को फास्ट करना है तो मुझे सिर्फ वो तरीके ढूंढने चाहिए जिससे मैं इस स्टेप को फास्ट कर पाऊं। मेक सेंस? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? है ना। तो इसीलिए जो स्लो स्टेप होता है हमेशा रिएक्शन की काइनेटिक्स उसी स्टेप पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए इस रिएक्शन में, इस स्टेप में स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, जिसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं, RDS, उसमें क्या इन्वॉल्व है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल